So yesterday you were having the test of chapter reaching the age of adolescence, right? So let's discuss the questions firstly. So the first question was, a boy is 11-year-old and has 80% of his full height. Okay, you are given the age also and आपको percentage height भी given है. Okay, so age उसकी है 11 years and the percentage of height that is given to you that is 80%. Okay, तो मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने जो ग्राफिकल वैल्यू है, जो गिवन वैल्यूज हैं वो दी होंगी. ओके, नाउ एट प्रेजेंट जो उसकी हाइट है दैट इज 120 सेंटीमीटर. यू हैव टू कैलकुलेट द फुल हाइट एट द एंड ऑफ हिज ग्रोथ पीरियड. ठीक है, तो वी नो दैट द फुल हाइट it will be equal to the present height. ठीक है, अब न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है. न्यूमेरिकल में हमने कभी भी डायरेक्टली वैल्यूज जो है वो पुट नहीं करनी होती हैं. ओके, सो यू शुड बी राइटिंग द फॉर्मूला फर्स्टली, जिससे हमें पता चले कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअली. राइट, तो प्रेजेंट हाइट जो आपको गिवन है दैट विल बी इन द सेंटीमीटर. और हमने क्या दिया हुआ है आपको, वी आर गिवन विद द परसेंटेज ऑफ द फुल हाइट एट दिस एज. So that is already given to you. Into हम कर देंगे 100. Okay. Now yes Akul, what will be the value beta after substituting? मैम 148 सेंटीमीटर. Present height कितनी है उसकी? 120. Divided by जो percentage आपको given है 81. that is 80. 80. Into हम कर देंगे 100. Okay. So that is 150. हाँ जी बेटा, आंसर इज 150, राइट? यस नो, आप सबका 150 आया है कि नहीं? So the present height it will be, or the full height, sorry, the full height at this particular age group it will be 150 centimeter, right? So this is your first numerical. So numerical I am telling you again, whenever you are going to solve the numerical, write the formula firstly. तो formula के marks हैं, then solve करने के भी marks हैं, तो separate division है. Okay, now coming to the next question is, what do you mean by, or you have to define the terms menarche, puberty and menopause. तो आपने ये तीन terms जो हैं वो explain करनी है, define करनी है. So who will be explaining them? Yes. Yes, Taranya. Define menarche, beta. Yes, the first menstrual flow which begins at puberty in women is called as menarche. Very good. So the first menstrual flow, it is known as menarche. Very good. Yes, menopause. Ma'am, the stoppage of menstrual flow at the age between 45 to 50 years in females is called as menopause. Very good. So when these menstrual cycles, they actually stop between the age group of 45 to 50. So this is known as menopause, right? Yes, Sanvi, what is puberty, beta? Yes, ma'am. The stage when body is able to reproduce is known as puberty. Okay, puberty, it marks the age when your reproductive organs, they are fully mature in order to reproduce. Okay, so that marks the puberty. So puberty की age होती है generally it starts from 13 to 14 years. Okay, right? और girls में 10 to 12 years earlier हो जाती है boys से, right? Coming to the next is, you have to write down the glands location, their hormones secreted and what are their functions also. तो आपको सिर्फ 2 glands यहाँ पर पूछे हैं. ओके, तो हमने बाकी भी जो हैं वो सारे डिस्कस करने होते हैं, राइट? पता होने चाहिए आपको सारे के सारे glands का. तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक्चुअली 2 ही पूछे हैं, तो देखते हैं. So the first one is adrenal gland. You are given with adrenal gland. Where it is present? Adrenal gland कहाँ present होता है? Between, yes,
It is in pair, so pair of these glands, it is present on the top of each kidney. Okay, then the next is, yes, Akul, Ma'am, Beta, yes. Ma'am, the hormone secreted by them is ma'am, adrenaline. 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 And what is their function, beta? And they regulate heartbeat and blood pressure, and they control feelings. They will Control feelings like anger or emotions. okay, so they control the feelings of anger, anxiety, emotions. Anger, anxiety, stress. ओके तो ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं. एंड व्हाट एल्स? They regulate heartbeat and blood pressure. नो दे डोंट रेगुलेट द हार्ट बीट. ये सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करते हैं. ओके दे मेंटेन सॉल्ट बैलेंस इन दी बॉडी. Okay, coming to the next was the thyroid gland. So what is the location of the thyroid gland? Yes, Diya. Ma'am, located in neck low region. Okay, located in the neck region. Okay, below your voice box. So the gland that is secreted by the thyroid is? हाँ जी बेटा, ग्लैंड कौन सा secrete करते हैं ये? Yes, Diya. Ma'am, thyroxine. Thyroxine. And what are their functions? Regulate body temperature. Very good. It regulates the body temperature. और बेटा? Ma'am, and control the deficiency of iron. Very good. So basically thyroxine, जो thyroxine hormone है, it basically needs iodine. Okay, iodine is necessary for the formation of thyroxine hormone, and when the body is not able to produce sufficient amount of iodine, then the person might suffer from a disease called goiter. Okay, so यहाँ से अगर ये thyroxine जो है वो insufficient amounts में present है या release हो रहा है, so the person it can get the goiter disease where it will be having the swollen neck, big and bulging, जो throat है वो swell कर जाएगा. Okay, so this is all about your test. Any other doubt बेटा? किसी को कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो. Okay, चलिए coming to the next now, let's move to our chapter of chemical effects of electric current. So yesterday we discussed about the topic of LED, right? जिसमें मैंने आपको लाइट emitting diode का बताया था. So this is the LED बेटा, बहुत छोटी सी है, देख सकते हो आप. Okay, so this is LED, this is the bulb, and here is the two leads. दो वायर्स लगी हुई हैं, एक छोटी है और एक जो है वो बड़ी है. तो बड़ी वाली को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और जो छोटी वाली है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ. ओके, तो आपने देखे होंगे ये LEDs जो हैं वो यूज होती हैं, राइट? So coming to the second part,
Yesterday we discussed about the conductivity of the substance. तो यहाँ पर मेरे पास एक apparatus है जहाँ पर हम simple apparatus है जहाँ पर हम conductivity दिखा रहे हैं. So here I am having the battery. ठीक है, तो आपके टेस्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? एक बैटरी होनी चाहिए, वायर्स होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी बल्ब. बल्ब हो, नॉर्मल बल्ब ले सकते हो आप, टेस्टर्स ले सकते हो. ठीक है, एलईडीज भी ले सकते हो आप यहाँ पर इफ द करंट फ्लोइंग इज लेस. बट हमने बैटरी जो है वो ज्यादा वोल्ट की लगाई हुई है, तो सफिशिएंट करंट इट विल पास थ्रू दिस सर्किट. ठीक है, हियर इज अ स्विच दैट इज गोइंग टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, राइट. तो जब आप इसको ऑन कर दोगे तो द बल्ब विल ग्लो. कैन यू सी द ग्लो? ओके, तो जब आप इसको एक्चुअली टच करवाते हो यहाँ पर मेटल के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हो नेल लगा हुआ है. ओके, सो व्हेन आई एम टचिंग दिस विद दिस नेल, नेल बीइंग द मेटल, तो गुड कंडक्टर है, तो कंडक्टिविटी कर रहा है. ओके, कैन यू सी बेटा? राइट. तो व्हेन आई एम टचिंग दिस विद दिस नेल, तो करंट इट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड यू आर एबल टू सी द बल्ब. राइट. तो जब ये ऊपर है, जब ये इस आयरन नेल को टच नहीं कर रहा है, इन दिस पोजीशन यू कैन सी द करंट इज नॉट फ्लोइंग. राइट. तो एयर है, एयर इज अ बैड कंडक्टर, तो हम पढ़ते ही हैं यहाँ पर. राइट. अगर आप यहाँ पर कोई और चीज भी लगा दोगे, इंसर्ट कर दोगे, जैसे सपोज आई हैव इंसर्टेड अ पेपर हेयर. ठीक है, अब मैंने इस आयरन नेल की बजाय यहाँ पर एक पेपर जो है वो इंसर्ट कर दिया है. अगेन पेपर इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर. राइट. तो मैं देखो प्रेस कर रही हूँ, आई एम प्रेसिंग, मैंने इस नेल को कवर कर दिया. अब यहाँ पर आई हैव कवर्ड दिस नेल विद द पेपर, पेपर बीइंग अ बैड कंडक्टर. तो जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ स्विच को, अगेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग. ठीक है, तो दैट शोज कि जब आप यहाँ पर कोई इंसुलेटर ले आते हो या इंसुलेटर लगाया हुआ है, इन दिस पोजीशन द इंसुलेटर विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अगेन मैंने देखो पेपर रिमूव कर दिया, नाउ आई एम टचिंग, तो द बल्ब इज ग्लोइंग. ठीक है, जब यहाँ पर मैंने पेपर लगा दिया है, इस आयरन नेल को कवर कर दिया है मैंने पेपर के साथ. ओके, एंड व्हेन आई एम एक्सर्टिंग प्रेशर ओवर हेयर, ठीक है, तो आप देख सकते हो तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं है. Okay, so this is how we can show the conductivity of the substances. So this is very simple apparatus जो आप घर पे भी बना सकते हो. Right. So yesterday we also discussed about the electrical conductivity of the substances, where we discussed that the water, if I am taking the distilled water, तो जो distilled water होता है that is actually a poor conductor or a bad conductor of electricity. बताया था मैंने आपको कल. ओके, जो वाटर है व्हेन इट विल बी बिकमिंग कंडक्टिंग, जब आप उसमें क्या ऐड कर दोगे, देयर विल बी सम सॉल्ट एडेड इन इट, देयर विल बी सम टाइप ऑफ impurities that can be present in it. Okay, or there can be ions that can be present in this. ठीक है, तो इन तीन चीजों से, सॉल्ट से, इम्प्योरिटी से या आयन से, जो आपका पानी है वो कंडक्टिंग हो जाता है. नाउ डिस्टिल्ड वाटर इट इज डिवॉइड ऑफ और इट इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द आयंस. ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते हैं, वो आयंस जो है वो सारे रिमूव कर दिए जाते हैं, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है उसमें, किसी तरह का कोई सॉल्ट जो है वो यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है डिस्टिल्ड वाटर में. इसीलिए जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है दैट बिकम्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ जी बेटा, इज दिस क्लियर? यहां तक समझ आया आपको? तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग अकुल, कि उसमें क्या होगा और किसके कारण वो कंडक्टिविटी जो है वो कर सकता है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्ट ही लिखा है, इफ आई हैव रिटन सॉल्ट हियर, सम टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज और आयंस. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहाँ से आएंगी? We need some type of salts, we need some type of ions. ठीक है, आपको पता है हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, we are having some of the chemical compounds that can form ions in water. ठीक है, अब मुझे मेरा पानी जो है वो कंडक्टिंग बनाना है, तो मेरा वाटर जो है वो कंडक्टिंग कब होगा? जब उसमें कुछ सॉल्ट आयंस जो हैं वो आएंगे.
इम्प्योरिटीज तो आप किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्ट और आयंस जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हेल्प इन द कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर, ठीक है। तो वी आर हैविंग सम ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, जब मैं उनको पानी में डालती हूँ, व्हेन आई पुट दीज केमिकल कंपाउंड्स इन दी वाटर, तो वो क्या दे देते हैं मुझे, वो आयंस दे देते हैं। एंड यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ आयंस, वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट द नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज and the positively charged species. Negatively charged species को हम anions कहते हैं और positively charged species को हम क्या कहते हैं, cations कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको आप जब पानी में डालोगे तो वो क्या दे देते हैं, आपको आयंस दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज देते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज देते हैं, ओके। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मैं लेके यहाँ पर आपको बताऊंगी सॉल्ट की, जो आप यूज करते हो, ठीक है। NaCl, NaCl सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, जो आप घर में भी यूज करते हो। यस, वेरी फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड दैट वी यूज ऑल्सो, ओके। नाउ सोडियम क्लोराइड, इस सोडियम क्लोराइड को जब मैं पानी में डालूंगी, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है। मैंने नमक लिया, मैंने एक ग्लास वाटर लिया, आप नॉर्मली सॉल्यूशंस बनाते भी हो, राइट, समर सीजन में जब आप करते हो, ठीक है, डिसॉल्व एक्वा सॉल्यूशंस बनाते हो, तो आपने वाटर लेना है, वाटर में आप सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हो, तो आप देखते हो कि नमक जो है वो सारा घुल जाता है पानी में, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन आया है जहां पर आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स किया है, ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है वाटर, जहां पर भी आप पानी ले रहे हो ना, वहां पर हम टर्म यूज करते हैं एक्वस। एज इट इज अगर मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है, देखो अब मैंने नमक पकड़ा हुआ है हाथ में, सपोज, ओके, सपोज आई हैव टेकन सॉल्ट इन माय हैंड, तो आपको लगता है कि वो सॉल्ट जो है वो कंडक्टिंग होगा, यहाँ पर क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हाँ जी, इज द सॉल्ट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अगर कोई भी चीज होती है तो वो कंडक्टिविटी नहीं शो करेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस सॉल्ट को पानी में डालना पड़ेगा, और जो मैं पानी वाला सोल्यूशन ले रही हूँ, एक्वस सोल्यूशन ले रही हूँ, ठीक है, अब वो वाला जो सोल्यूशन है दैट विल बी कंडक्टिंग इन नेचर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया है, लाइक आई टोल्ड यू, फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस, फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस क्या बनने जरूरी है, आयंस बनने जरूरी है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी के लिए क्या बनने जरूरी है, आयंस बनने जरूरी हैं। तो जब आप NaCl को वाटर में डालोगे, ठीक है, आपने नमक को पानी में डाला, तो जब ये पानी में जाएगा तो ये आपको क्या देगा, इट विल बी गिविंग यू Na पॉजिटिव एंड इट विल बी गिविंग यू Cl नेगेटिव। तो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आ गई, तो ये कैटायन है और वो जो है वो क्या है, एनायन है। तो मेरे पास कैटायन और एनायन बन गए। अब आपको पता ही है कि जब भी कैटायन और एनायन बनेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, ये आयंस जो हैं वो मूव करेंगे, तो जब ये आयंस मूव करेंगे तो आपका जो करंट है वो कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द आयंस इट विल कॉन्स्टिट्यूट द करंट। हाँ जी, क्लियर बेटा, इज दिस क्लियर टिल नाउ, यहां तक समझ आया आपको क्या कहा है मैंने। तो हमारे पास कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो आपको आयंस देते हैं जब आप उसको किस में डालते हो, पानी में। तो यहाँ पर मैंने वन सच एग्जांपल आई हैव टेकन फॉर द सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, राइट। सिमिलरली सॉल्ट के बाद और कौन सी चीजें होती हैं जो आपको आयंस देते हैं, ठीक है, और कौन से केमिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं सॉल्ट के अलावा, दे आर एसिड्स,
यू आर फेमिलियर विद द टर्म एसिड्स, ठीक है। एसिड्स कौन कौन से हैं आपके? दो बेटा कोई एग्जांपल एसिड्स की, एनी एग्जांपल ऑफ एसिड्स? यस, हाँ जी लविश बोलिए। सल्फ्यूरिक एसिड मैम। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है, H2SO4 है, ठीक है। तो ये भी जब आप इनको पानी में डालोगे, ओके, सो दे विल बी गिविंग यू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अगेन आपके पास आयंस आ गए, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आयंस आ गए, H पॉजिटिव आया, Cl नेगेटिव आयन आया। तो जैसे जैसे ये मूव करेंगे उस सोल्यूशन में, तो मूवमेंट ऑफ आयंस जो है वो आपको क्या देंगे? करंट देंगे, ठीक है। सिमिलरली H2SO4 की एग्जांपल ले लेते हैं। इट विल बी गिविंग यू H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि दो हाइड्रोजन हैं तो दो लगाया मैंने। सिमिलरली द केमिकल कंपाउंड्स कैन बी बेसेस आल्सो। तो जैसे एसिड बिहेव करते हैं वैसे ही जो आपके बेस हैं वो भी जो हैं they can also conduct the electricity, right? So very common example of the bases that you have studied। बेटा कौन कौन से bases आपने पढ़े हुए हैं अभी तक? हाँ जी, common bases that you have studied। Yes Taranya? Ma'am, sodium hydroxide. Very good, you have studied the sodium hydroxide, that is NaOH। तो जब आप NaOH को वाटर में डालोगे it will be giving you Na positive and OH negative, ठीक है। तो similarly you can take the example of KOH also, so that will be K positive and OH negative, ठीक है। तो अगर मैं अपने पानी में if I'll be adding the salt, acid और bases in the distilled water, तो फिर जो मेरा डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या बन जाएगा? कंडक्टिंग बन जाएगा, ठीक है। सो एडिशन ऑफ सॉल्ट, एसिड एंड बेसिस टू द वाटर, टू द डिस्टिल्ड वाटर, इट विल मेक देम कंडक्टिंग इन नेचर। हाँ जी, इज दिस क्लियर टिल नाउ बेटा? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। यहां तक सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। Now let's take the example of some other sources of water, ठीक है। हमारे पास पानी जो है वो बाकी सोर्सेस से भी आता है, like we are having tap water, we are having the water of the rivers, ponds, seas, oceans। So do you think this water is conducting or not? आपको लगता है ये पानी जो है, यहाँ से जो पानी आ रहा है हमारे पास, ये कंडक्टिंग है कि नहीं है? Yes, this is conducting in nature, okay। So the tap water, it also contains some of the salt, some of the ions, ठीक है। river, seas, pond, oceans में जो पानी है आपने पढ़ा हुआ है, seas और ocean में जो पानी होता है वो salty water होता है। You have studied this thing, okay। The water from the seas, the water from the oceans, okay, that is salty water। तो उसमें already salts हैं, right? So these salts they make the water conducting। impurities हैं, salt हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं पानी को क्या कर देती हैं? कंडक्टिंग बना देती हैं। tap water, river water, sea water, ocean water, pond water, they all will be conducting in nature, ठीक है। is this clear बेटा? यहां तक समझ आ गया सबको? okay। Now we will be doing one activity which will be showing the conductivity of the water। तो हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे? कंडक्टिविटी को शो करने के लिए there is one activity। So what we have to do is, तो जैसे मैंने कल ऑपरेटर्स बनाया था वैसे ही हमने करना है। So we will be taking a beaker containing the water। distilled water लिया है अब इस बीकर में मैंने, ओके। अब आपको पता है कि डिस्टिल्ड वाटर एज सच तो कंडक्टिंग नहीं है। तो सपोज मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया है, ओके। आई हैव एडेड द NaCl हियर। अब पूरा ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देना है।
with the battery, and then I'll be placing a bulb here, and these are the connections. ठीक है, तो इस तरह मैंने जो अपना apparatus है वो ले लिया हुआ है. यहाँ पर मैंने open ends रखे हुए हैं, right? So what do you think now? The bulb will glow or not? Yes. आपको क्या लगता है, बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा बेटा? यस, इट विल ग्लो इन दिस केस. व्हाई? बिकॉज देयर इज सम टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट इज एडेड. ओके, सो इन दिस केस द बल्ब विल ग्लो. सो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सब्सटेंसेस वी विल बी टेकिंग, तो देखते हैं कि किस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है कि नहीं. नाउ सेकेंडली, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ लेमन जूस. अब मैंने यहाँ पर बीकर में लेमन जूस ले लिया है. Okay, now here in the beaker, if I have taken the lemon juice, will it be conducting or not? हाँ जी बेटा, will it be conducting or not? Yes, the bulb will glow. ठीक है, तो लेमन जूस के केस में भी जो आपका बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, because this is an acid. Very good. टैप वाटर के केस में बल्ब ग्लो करेगा? Yes, it will glow. ठीक है, क्योंकि उसमें भी impurities होती हैं. Let's take the another example of, suppose alcohol ले लिया हमने. If I have taken alcohol, हाँ जी बेटा, alcohol ले लिया मैंने. No, the bulb will not glow. ठीक है, क्योंकि alcohol जो है वो आपको ions नहीं देता है पानी में. ठीक है, it will not give you ions. ठीक है, so in this case the bulb will not glow. विनेगर को और क्या कहते हैं हम? विनेगर is actually the dilute form of acetic acid. तो विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड की dilute form है. ठीक है, तो एसिड आ गया है, that means in this case also the bulb will glow. शुगर ले ली मैंने, चीनी ले ली है. Yes बेटा, if I have taken sugar, what do you think, the bulb will glow or not? No, the bulb will not glow in case of sugar, क्योंकि sugar भी जो है वो आपको ions नहीं देती है. Okay, let's take some another examples like petrol. What do you think in case of petrol बेटा? पेट्रोल के केस में no, again पेट्रोल भी आपको ions नहीं देगा. If I have taken mustard oil, मैंने mustard oil ले लिया है. Again, the bulb will not glow. ठीक है, क्योंकि ऑयल भी जो है वो आपको आयंस नहीं देगा. Similarly, I can take kerosene oil. ठीक है, जैसे मैंने पेट्रोल लिया, ऑयल लिया, कोई भी मस्टर्ड ऑयल लिया, मैं केरोसिन ऑयल भी ले सकती हूँ. ठीक है, now coming to the next is dilute HCl. If I have taken dilute hydrochloric acid, what will the reaction of the bulb in this case? Bulb will glow or not? Yes, the bulb will glow. Sodium hydroxide, potassium hydroxide. Yes beta, sodium hydroxide, potassium hydroxide. So in all these cases, the bulb will glow. Okay, so this is all about the conductivity of the substance. ठीक है.